اور یہ ببلیکل ڈاکٹرین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہے سادہ بات ہے، لیکن ہمیں اس کی تجدید کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ بھیڑ چال کا شکار نہ ہو جائیں۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت پہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر اس کی برکت ہو۔ 3 باتیں ہیں، 3 کام ہیں جن کو خداوند نے پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک خیرات ہے، ایک دعا ہے، اور ایک روزہ ہے۔ خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا پوشیدگی میں رہتا ہے۔ اس کے ڈویلنگ پلیس ہے سیکرٹ پلیس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زبور 91 ورس 1 میں کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ کس کے پردہ میں؟ حق تعالیٰ کے پردہ میں، the secret place of God۔ جب سیکرٹ پلیس کی بات کرتے ہیں، جب وہ رہتے ہی سیکرٹ پلیس میں ہے تو ہم اسے ان سیکرٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چنانچہ اگر آپ نے خیرات کرنا ہے تو کیا کہاں پر کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تصویر بنا کر پوشیدگی میں۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پرسنل پریئر، آپ کو کوٹری میں جانا ہوگا۔ اور میں کلیسیا میں اس بات کو زور دیتا ہوں کہ اپنی جو پریئر ہے اس میں جو ہے وہ انر چیمبر جسے ہم کہتے ہیں، سیکرٹ پلیس کہتے ہیں، وہ بنائیں، اس میں جایا کریں تاکہ خدا دیکھے۔ لیکن خدا پوشیدگی میں دیکھتا ہے، خدا پوشیدگی میں بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور پھر کہا اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ وہ سیکرٹ پلیس میں رہتا ہے اور جو ہے وہ پوشیدگی میں جو دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ یہ کل سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہے، اور یہ ایش لگانا یہ ہمارے جو کیتھولک بہن بھائی ہیں ان کے ہاں یہ عام ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کئی ایسے، میں نے فیس بک کے اوپر ایسے منسٹریز کو بھی دیکھا کہ ان کو فالو کر رہی ہیں۔ لہذا ہم اس بات کو پھر مان لیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ کرائسٹ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب سے جسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، یہ کرسچینٹی کے اندر ایک جو ہے خاص دستاویز رکھتا ہے۔ آمین۔ اور یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جس میں سے کسی ایک مسیحی کو ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر ہم اپنا خدا یسوع مسیح کو فالو نہیں کر پائیں گے۔ میں کل آؤٹ آف دا اسٹیشن تھا تو ایک جگہ کے اوپر ان کی پریئر تھی، تو مجھے کویسچن کیا کہ آپ نے ایش وینسڈے کو
सर्विस कर रहे हैं? मैं कहा आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विस करना बुरी बात है। हम जब खुदा के हुजूर में आते हैं तो हम बरकत पाते हैं, लेकिन फॉलो करना, ठीक है, ऐसी चीज़ों को जो मुनासिब नहीं है, जो बिब्लिकल नहीं है, उसको फॉलो करना ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने जवाब मुझे दिया, कामलों में हम कामल बात करते हैं, फलाने ये है जो यूनानियों के साथ यूनानी, यहूदियों के साथ यहूदी। तो ये तो बशारत का काम है भाइयों, कलीसियाओं के अंदर तो ना करें, जाकर बशारत दें। ठीक है, आमीन। मसीहों के साथ मसीही बने हुए, आमीन। मसीहों के साथ क्या बनना है? मसीही बनना है, और मसीह ने जो किया है वो करना है। आमीन। लिहाजा जो क्राइस्ट की एजुकेशन है हमने उसको फॉलो करना है, और ये लिटरल है, ये सिंबॉलिक नहीं जो क्राइस्ट ने यहां पर तालीम दी है। इट इज नॉट अ लिटरल कि तू अपना मुंह हाथ धो, अपने सर पर तेल लगा, ये लिटरल नहीं। ये क्या है? ये सिंबॉलिक नहीं, ये लिटरली ऐसा ही है जैसा कहा गया है। ठीक है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, स्पिरिचुअल मायने निकालते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल बाद में है, लिटरल पहले है। और लिटरली क्या है? अपना मुंह हाथ क्या कर? धो। क्या धोया? तो अपने सर पर क्या कर? तेल लगा। क्या लगाया? ठीक है, नहीं मैं अपने सर के ऊपर खाक डालूंगा। डालिए, अच्छी बात है, ठीक है, डाल लें, लेकिन जो क्राइस्ट ने कहा है वो फॉलो करें। इसमें कोई शक नहीं है कि रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना, और जो है पानी से, खाने पीने से जो है वो बाज आना, इसका जो मफहूम बनता है, खाने पीने से अपने आप को बाज रखना, इसका रोजे का जो मफहूम है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अपनी जान को दुख देना, लेकिन मफहूम क्या है? खाने पीने से जो है वो करना। अगर हम स्पिरिचुअली इसके ऊपर आए तो इसका मतलब यह है कि अपने बदन को जो हर तरह की जो ख्वाहिशों से, जो 3 तरह की ख्वाहिशें हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं, कि वो आंखों की ख्वाहिश से, जिस्म की ख्वाहिश से और ज़िंदगी की शखी से क्या करें? अपने आप को बचाएं। तो रोज़ा इसके ज़रिए से, या रोज़े के ज़रिए से हम इन 3 बड़ी जो है ख्वाहिशों से, इन 3 बड़ी टेम्पटेशन से क्या करते हैं? वो बच जाते हैं। आमीन। लिहाजा ये सीक्रेट है। चलें, ये भी एक बात है कि जब हम नेशनली यह रोज़े के ऊपर आते हैं, या हमने ये राइज हो गया, तो फिर इसका ये मतलब है कि सबको मालूम है कि रोज़ा है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है उन बातों को जो साया थी, ठीक है, जो है उसको अपनाएं। हम तो फिर पीछे की तरफ गए, ना कि आगे की तरफ गए। हमने असल को तो फिर छोड़ दिया। हमें असल को थामना है, साया को तो नहीं पकड़ना है। आमीन। नकल को नहीं, असल को पकड़िए। साये को नहीं, असल को पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। पोशीदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए जो मुनासिब है। आजकल यह यहाँ पर यह एक नया रिवाज स्टार्ट होने जा रहा है कि अफ्तारियां भी होंगी, सहरियां भी होंगी। माय डियर, इन चीज़ों से बचिए। हमें पोशीदगी को यह ज़रा यह वो जगह दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर जुमेरात को रोज़ा रख कर आए। आपको जो है आपका बदन आपको इजाज़त दे रहा है, रखिए, लेकिन कलीसिया के ऊपर जो है वो रोज़ा रखना फर्ज। जब हम फर्ज की बात करते हैं तो एक और बात भी सुन लीजिए। जब हम फर्ज कहते हैं तो फर्ज का मतलब ये होता है कि इसके वसीले से हमारी निजात है। अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम निजात नहीं पाएंगे। चाचे जो यह मज़ाहिब के अंदर तालीम पाई जाती है, जिसमें ये एक बात है कि अगर रोज़ा फ़र्ज है, फ़र्ज यानी उनकी निजात का तल्लक, उनकी रिहाई का तल्लक, उनकी रिडेम्पशन का तल्लक इसके साथ बराए रास्त है। हमारी निजात का तल्लक बराए रास्त यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के ऊपर है।
यीशु मसीह के ऊपर यकीन करने के ऊपर है, उसको अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा मानने के ऊपर है, उसके कफ़ारे के ऊपर है, उसकी सलीबी मौत, उसके मरने, उसके दफन होने और उसके जी उठने के ऊपर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चुनांचे इस मायनों में गौर से सुनिए, इस मायनों में जो है रोज़ा हमारे पर फर्ज नहीं है, लेकिन एक वे है जिसके ज़रिए से कलीसिया का हर एक फर्द जो है वो रोज़ा रखे। और वो क्या है? निकालिए मत्ती की इंजील उसकी 15वीं आयत, बल्कि 14वीं आयत से पढ़िए। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। क्राइस्ट फिजिकली तौर पर जो है वो चर्च से दूर हो गया, वो शागिर्दों से दूर हो गया, वो उनसे इलादा हो गया। ठीक है, जब यीशु मसीह जी उठा और उसके फिर 40 दिनों के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह जो हवा में जो है वो बादल में उड़कर जो है आसमान पर चला गया और खुदा की दाहिनी तरफ वो बैठा है। चनाचे वो फिजिकली तौर पर जो है वो अपने लोगों से जुदा हो गया। यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि जब जो है दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। वो इसलिए रोज़ा नहीं रखेंगे कि जो है वो मातम करें, वो इसलिए रोज़ा नहीं रखेंगे कि जो है यीशु मसीह जुदा हो गया, वो इसलिए रोज़ा रखेंगे कि हम ऐ खुदा इस ज़मीन पर तेरे मुंतज़र हैं। आमीन। हम इसलिए रोज़ा रखेंगे कि हम यह तैयारी करेंगे, और ये दुल्हन की तैयारी है। आमीन। द प्रिपरेशन ऑफ द ब्राइड। ब्राइड किस तरह जो है वो अपना बनाव श्रृंगार करेगी, ब्राइड किस तरह अपने दाग और झुर्रियों को जो है वो सही रखेगी, या वो अपने लिबास को जो वो पाक रखेगी। ये यीशु मसीह ने जो है वो इन फकीयों, फरीसियों और यूहन्ना के लोगों को ये बयान किया है कि जब वो उनसे जुदा होगा तो वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। लिहाजा क्राइस्ट की जो तालीम है कि तू जब भी वो रोज़ा रखेंगे क्या करेंगे? वो अपना मुंह धोएंगे, वो अपने सर के ऊपर तेल डालेंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जब वो खुदा के हजूर में झुकेंगे तो बिल्कुल जो है वो खुदा के तालिब होते हुए नजर आएंगे। और जब जो यीशु मसीह ने ये कहा है कि जब वो दुल्हा जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये रोज़ा जो है किसका रोज़ा है? कलीसिया के रोज़े हैं। आमीन। और जब तक ये क्राइस्ट नहीं आ जाता तब तक हर एक यह मसीही और हर एक ईमानदार और हर एक चर्च के मेंबर के ऊपर जो है ये आता है कि वो इसको फ्रीजा समझ ले कि मुझे यीशु मसीह के आने तक जो है उसके लिए तैयारी करनी है। चाचे हम किस लिए रोज़ा रखते हैं? इसलिए रोज़ा रखते हैं ताकि हम अपने दुल्हा के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। चाचे जो है कहा जाता है कि रोज़ा के लिए कोई मकसद होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मकसद जो है चर्च का रोज़ा रखने का मकसद क्या है? कि यीशु मसीह जल्द आ जाए। आमीन। ठीक है, आप अपनी पर्सनल दुआओं के अंदर आप अपनी पोशीदगी में जाइए उसके पास जहाँ पर वो खुदा जो है पोशीदगी में, मेरा आसमानी बाप पोशीदगी में देखता है, उसके कदमों में झुकिए और उससे कहे कि बाप देख जो है हम तैयार हो रहे हैं, हमारे यह देख दाग और झुर्री नहीं है। यूं समझ लीजिए रोज़ा रखने के वसीले से आप जलाली सूरत को पकड़ेंगे। और यही तो बात एफेसियों के खत के अंदर ये पौलुस रसूल ने जो है वो बयान की है कि वो कलीसिया जो है वो किस तरह हाजिर होगी, बेदाग होगी, उसमें झुर्री नहीं होगी, और उसे वो बाप के सामने हाजिर करेगा। आमीन। जो बाप के सामने हाजिर की जाएगी जो है वो कलीसिया, वो कैसी कलीसिया होगी? वो रोजादार कलीसिया होगी। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा इन दिनों में जो है ये मौके मिलते हैं कि हम इन बातों के ऊपर बात कर सकें, और शायद इसलिए लोग जो है इसकी जो है अहमियत को दूसरे दिनों में नहीं समझ पाते हैं। इसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, जो है रंग बिरंगी पोस्ट आती है, रंग बिरंगी बातें वो आती हैं। लिहाजा जो बात जिसके ऊपर मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ और जिसके लिए आज हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे कि हम अपने आप को जो है खुदावंद के हुजूर में आजिज करें। आमीन। जो क्राइस्ट की तालीम है उसे हम जो है वो वायलेट ना करें। आमीन। ये भेड़ चाल नहीं है, ठीक है, भेड़े जरूर हैं, ठीक है, लेकिन क्राइस्ट को फॉलो करने के लिए हम भेड़े जरूर हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छे चरवाहे को फॉलो करने के लिए ऐसे नहीं कि जिसने जैसा चल रहा है वैसे चले। ये लोगों की डिमांड है, वो करते हैं मैं भी करूंगा, नहीं, ठीक है, ये लोगों की डिमांड के ऊपर नहीं, क्राइस्ट की जो डिमांड है, क्राइस्ट की जो तालीम है, हम उसको फॉलो करने वाले हों। आमीन। ठीक है, मुझे फॉलो नहीं करना, ठीक है, किसी और पास्टर को फॉलो नहीं करना, ठीक है, जो बिब्लिकल जो है डॉक्ट्रिन्स हैं उसको फॉलो करना है। आमीन। जो बिब्लिकल थियोलॉजी है उसको फॉलो करना है, और वो ये है कि जो है अपना मुंह धो, ठीक है, और अपने जो है वो क्या कर, अपने सर के ऊपर तेल लगा, ठीक है, ऐसे जैसे वैशी नजर नहीं आना चाहिए खुदा के हुजूर में। देखिए, हम यीशु मसीह के खून से धोए गए हैं, हमें यीशु मसीह ने अपनी कीमत से खरीदा है। अगर हम जो है उसके हुजूर में झुकते हैं तो इस वजह से झुकते हैं कि हमने प्रेपरेशन करनी है, हमने तैयारी करनी है, हमने अपने आप को खुदावन के हुजूर में रखना है। चनाचे मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि मैं जो है मसीह के क्लोज हो जाऊँ। मैं इसलिए जो है रोज़ा रखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो जिस्म की ख्वाहिश उठती है मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ। मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ जो मेरी आंखें जो देखती हैं वो ना देखें, जो देखना चाहिए वो देखें। आमीन। मैं उस शेखी को जो आम जिंदगियों के अंदर जो है वो भरी पड़ी है, घमंड है, और यूं जो है हम जो है मुश्किलात के अंदर फंस जाते हैं, वो उसकी जिंदगी उसको अपना लें। अब ये देखिए, जो रोज़ा रखते हैं जो है इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर क्राइस्ट को जो है वो आजमाया गया है। वो जो है उसे खाने पीने के ऊपर, उसे जिस्म की ख्वाहिश के ऊपर उभारा गया है, उसे जो है जिंदगी की शेखी के ऊपर उभारा गया है, उसे जो है आंखों की ख्वाहिश के ऊपर उभारा गया है। उन तीनों बातों के अंदर जो है उस रोज़ादार ने जो है फतह पाई है। आमीन। उस रोज़ादार ने क्या की है? फतह पाई है, और उसने कहा आखिरी बात ये कही, ऐ शैतान दूर हो। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक रोज़ादार जो है वह यही कहता है, बोलिए क्या? उसका जो इंजाम क्या होता है, उसका जो है रोजे का इंजाम क्या है, रोजे का जो नतीजा क्या है, ठीक है। और रोजे का नतीजा ये है कि वो जिस्म के ऊपर फतह पाता है, वो आंखों की ख्वाहिश के ऊपर फतह पाता है, वो जिंदगी की शेखी के ऊपर वो फतह पाता है, और शैतान क्या करता है? वो भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लोग रोजा रखेंगे, आमीन। जब तक धुला है वो क्यों कर मातम कर सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह के साथ जितने लोग थे वो रोजा नहीं रखते थे। कई दफा जो है ये आम तालीम है कि हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ तो काफी है, जब मैं दुआ इस तरह कर लेता हूं तो फिर मुझे दुआ रोजा रखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि वो रखेंगे। अब गौर से सुनिए, क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? एक दूसरे को बताएं, वो बताएं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। एक दूसरे को ऐसे करके, जिस तरह जो है विष्णु सलमान ने कहा है, अरे कैसे कहा वो? आमीन। क्या कहा उसने? वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह का मान रखिए। आमीन। यीशु मसीह का क्या करें? 40 नहीं, 365 रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, 40 नहीं फिर 365 रखिए, ठीक है। उसने कहा मेरे लोग रोजा रखेंगे, ठीक है। और जब तक कि क्राइस्ट नहीं आ जाता, उसको मालूम हो कि खुदावन मैं बेताब हूं, मैं ये चाहता हूं कि तू आ जाए और हम एक हो जाएं,
मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि तू आए और हम एक हो जाए। वो मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि मैं बादशाही में जल्दी दाखिल हो जाऊँ। मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि मैं उसकी बादशाही में जाऊँ और उसका दीदार कर सकूँ। मैं इसलिए जो है रोज़ा रखना चाहता हूँ कि मैं उसे रूबरू देख सकूँ। मैं इसलिए रोज़ा रखना चाहता हूँ कि मैं उसके तख्त के सामने खड़ा हो जाऊँ। मैं इसलिए रोज़ा रखना चाहता हूँ कि मैं जो है वो बरा की जमायत का हिस्सा बन जाऊँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चाचे रोज़ादार जो है वो शैतान की परगाली बातें हैं, ये लिटरल है। आमीन, ठीक है। अगर आप जो है ऑयल लगाते हैं, जब आप मुंह धोते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो फकीयों फरीसियों की तालीम को रद्द कर रहा है। वो जो है पहले को मकूफ कर कर जो है दूसरे को जो है वो नाफिज कर रहा है। आमीन। लिहाजा जो चीजें मकूफ कर दी गई हैं उसको अपने ऊपर सवार करने की क्या जरूरत है। आमीन। अपने ऊपर निशान लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ क्राइस्ट ने कर दिया है वो काफी है। और इस तालीम के अंदर फजल पाया जाता है, इसके अंदर जो है इतनी गुंजाइश है कि हम अपने खुदा के तालीम हो सकते हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी देखें तो यही तालीम आपको मिलेगी जो क्राइस्ट ने दी है। उसे कहा कि अपने कपड़े चाक ना कर, बल्कि क्या कर, अपने दिलों को चाक करो। यही तालीम आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी यही तालीम पाई जाती है। चुनाचे जब जो है पूरे बाइबल की तालीम ये है कि तू अपने कपड़े चाक ना कर, बल्कि क्या कर, अपने दिल को चाक कर। तो फिर क्राइस्ट ने तो वही बात करनी है जो उसके कलाम के अंदर है। ठीक है, इसलिए भेड़ चाल नहीं करनी, जो जिसने देखा वैसे ही करे। वो करता है तो हम भी करेंगे। जो बाइबल के मुताबिक है उसे चूज करने, उसे मुंतखब करने और उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। आमीन। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप रोजा न रखें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर वक्त रोजा रखना, हमें हर वक्त रोजे में रहना चाहिए ताकि जाने कि हम रेडी हैं। आमीन। चनांचे जो रोजादार हैं वो ये बयान करते हैं कि हम रेडी हैं, हम मुंतजर हैं, हम तैयार हैं। आमीन। ज्यादा हम उसके मान के लिए क्या करें, रोजा रखा करें। आपका बदन आपको क्या इजाजत देता है, आप रोजा रख सकते हैं, रखिए। आमीन। आपको रखना चाहिए, बल्कि अब यूं कहूंगा कि रखना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि वो रखेंगे। चाचे इसका मतलब है वो आसमान पर देखता है, वो पोशीदगी भी देखता है। मैंने तो कह के गया था अपने शागिर्दों को कि वो रोज़ा रखेंगे, लेकिन ये शागिर्द क्या करते हैं, राख तो लगवा लेते हैं, रोज़ा नहीं रखते। ठीक है, रोज़ा नहीं रखते, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, खाक लगा लेनी है, ठीक है, रोज़ा नहीं रखना। भाई ये क्या बात हुई कि आपने रोज़ा नहीं रखा? अगर ऐसा ही शौक है तो फिर रोज़ा भी रखो, ठीक है। फिर एक दिन ही क्यों, फिर सब वक्त रखो। जुमे ही को क्यों, जी जुमे को यीशु मसीह कुर्बान हुआ था, ठीक है। वो तो जो है अभी तक अगर आप आसमान पर देखें, जो यूहन्ना ने तस्वीर दी तो उसको लिखा है कि एक मैंने बरा देखा, ज़िबा किया हुआ बरा देखा। तक के बीच में क्या देखा, ज़िबा किया हुआ बरा देखा है। वो तो अभी भी जो है सबको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि मैं अब भी जो है तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान किए हुए हैं, ठीक है। ये इरा चल रहा है। वो जो ज़िबा कुर्बान हुआ, जो बरा कुर्बान हुआ है, वो बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है हर वक्त, ठीक है। उसका खून हमें संभालता है, उसका खून हमें पाक और साफ करता है। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूँ और आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, यह है कि कलीसियाओं के अंदर क्राइस्ट एजुकेशन जो है नाफिज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, चाहे लंच सीजन के हों चाहे वो दूसरे हों, हमें क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को बिल्कुल जो है वो अप टू डेट करें। आमीन। इसलिए कि आप बिलीवर की हैसियत से रोज़ा रखते हैं, ठीक है। आप किस लिए रोज़ा रखते हैं, बिलीवर की हैसियत से रोज़ा रखें। नापाक या जो है गुनाहगार ये भी रोज़ा रखते हैं। अगर गुनाहगार अपने गुनाह के लिए जो है खुदा की तालिब हुआ तो रोज़ा रखे, ठीक है। लेकिन चर्च को जो नाफिज किया गया है कि वो रोज़ा रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो एज ए बिलीवर, आमीन, एज ए बिलीवर वो रोज़ा रखते हैं। आमीन। मैं रोज़ा रखूंगा बिलीवर की हैसियत से, आमीन।
ہاں یہ بائبل کے اندر تعلیم ہے کہ جب بھی ایسی مشکلات آئی ہے، اگر کوئی شخص خدا کے طالب ہوا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہی، انہوں نے جو ہے توبہ کی اور جو ہے وہ انہیں روزہ رکھا، خدا نے سنی. یہ بات ہے. اخیاب نے جو ہے ٹاٹ اوڑا اور دبے پاؤں چلنا شروع ہوا. خدا نے اس کو دیکھا کہ یہ دبے پاؤں چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس کے دبے پاؤں کو دیکھا ہے، اس کے خاک و راکھ کو نہیں، اس کے دبے پاؤں کو دیکھ کر جیسے کہا کہ اس کی جو ہے نہیں، اس کے ایام میں اس کے میں بیٹے کے ایام میں جو ہے وہ انتقام لوں گا. عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے ایک گناہ گار شخص اگر خدا کی حضور میں توبہ کرتا ہے تو خدا اسے جو ہے بحال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کلیسیا کے اندر جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلیور کی حیثیت سے خداوند کے حضور میں جو ہے وہ عاجز ہوں. آمین. کہ میں جو ہے بلیور ہوں، میں کلیسیا کا حصہ ہوں، میں تیرا شاگرد ہوں، اور اس لیے میں تیاری کے لیے آیا ہوں. آمین. میں ریڈی ہونے کے لیے آیا ہوں، اور روز روز جو میرے اوپر خاک آتی ہے نا، جو دنیا کی خاک آتی ہے نا، ٹھیک ہے، میں اس کو اتارنے کے لیے تیرے کلام سے اور تیرے پاک لہو سے دھلنے کے لیے جو ہے وہ تیرا طالب ہوا ہوں. آمین. کرائسٹ نے کیا کہا؟ یہ روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، میرے بعد کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. اور جب یہ روزہ رکھیں گے تو کیسے روزہ رکھیں گے؟ اپنا منہ ہاتھ دھوئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اپنے سر کے اوپر تیل لگائیں گے، اور خود میں اور میرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ کیا کرے گا؟ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تو جو کچھ ہماری نیڈز ہوگی، جس کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، وہ اس کا بدلہ ملے گا، اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن اگر جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے، آپ کو پھر بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن دنیا تک رہے گا. آمین. وہ اپنا اجر پا چکے. ٹھیک ہے، اگر واقعی ریوارڈ یہیں پر لینا ہے تو لے لیجئے، لیکن اگر واقعی باپ سے یہ اجر لینا چاہتے ہیں کہ جس کا یہ وہ باقی رہے، ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے، آمین، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے خدا کے یا حقیقی معنوں کے اندر تعلق ہونا شروع ہوں. آمین. ہم خاک اتارنے کے لیے روزہ رکھیں گے، خاک اوڑھنے کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے. آمین. خاک یہ ہے جو پڑتی ہے دنیا میں، چلتے 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 پھرتے وہ خاک، دھول خاک یا سر کے اوپر، باڈی کے اوپر، آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے، اس کو آپ جو ہے روزے کے ذریعے سے دور کیجیے. اور وہ کون سی ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اپنے خدا کے طالب ہوں گے.